السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود رحم خان۔ شمالی وزیرستان کو ملک سے علیحدہ کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ عمران خان کے خدشات، آرمی چیف دوبارہ مذاکرات بحال کریں۔ فضائی بمباری کے بجائے کیا ٹارگیٹڈ آپریشن نہیں ہو سکتا؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ بمباریاں ہو رہی ہیں، وہاں عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کدھر ہے؟ لیڈرشپ کدھر ہے اس ملک کی؟ ڈائلاگ کا کیا بنا ہے؟ اور کیا ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو کہ اپنی جانیں پاکستان کے لیے دی تھی کشمیر کے اندر آزاد کرنے کے لیے، آج وہ لوگ علیحدگی کا سوچ رہے ہیں؟ جی ناظرین، سب سے پہلے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی ایک اپیل جنرل راحیل شریف کو کہ خدا کا واسطہ ہے آرمی چیف دوبارہ مذاکرات بحال کریں۔ ان کے خدشات کہ شمالی وزیرستان کا حال کہیں ایسٹ پاکستان والا نہ ہو۔ بلوچستان کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اس بارے میں ہم بات چیت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ چونکہ آپریشن اب کسی شیپ میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ساتھ ہی براک اوباما کی طرف سے ایک بیان کہ ہم جو انخلا ہے، وڈرول ہے افغانستان سے نیٹو فورسز کا، امریکی افواج 2016 تک وہاں پہ ایک بھی امریکی فوجی نہیں رہے گا اور 2015 میں تقریباً 9000 کی تعداد رہے گی اور پھر سال کے آخر تک اس کو آدھا کر دیا جائے گا۔ آج ہم ان اسٹریٹجک ایشوز کے بارے میں ایک بڑے اچھے پینل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جنرل اسد درانی صاحب، سابق DGI ISI، اور قمر زمان کاہرہ صاحب ہمارے ساتھ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ ساتھ ہی رستم شاہ محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، رکن حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہیں، پشاور میں تشریف فرما ہے۔ تھینک یو جنٹلمین، السلام علیکم۔ چلتے ہیں سب سے پہلے رستم شاہ صاحب کی طرف، پشاور۔ رستم شاہ صاحب، یہ آپ کی بریفنگ کے بعد عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا ہے اور اس بیان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا وہ بریفنگ تھی یا کیا وہ عناصر ہیں جن کی وجہ سے آپ نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے بعد ان خدشات کا اظہار کیا ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں تحریک انصاف والے خود ہی آپ کو بتا سکتے ہیں، ان کے اپنے اسپوکس پرسن ہیں، اور میرے پاس تحریک انصاف کا کوئی عہدہ، کوئی آفس نہیں ہے، اور میں تحریک انصاف کے بہاف پہ کوئی بات کرنے کا مجاز بھی نہیں ہوں۔ رستم شاہ صاحب، آپ یہ بتائیے ہمیں کہ اس وقت جب سے آپریشن یا جو سرجیکل اسٹرائکس ہیں، ایئر اسٹرائکس ہیں، جب سے شروع ہوئی ہیں، اس کے بعد سے ہم نے کچھ پازیٹیو خوش آئند اقدامات بھی دیکھے ہیں، یا خوش آئند آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں نتائج دیکھے ہیں، جیسے کہ آج کی جو بڑی خبر تھی وہ یہ کہ محسود قبائل کی طرف سے جو محسود گروپ کی جو TTP سے علیحدگی کی اناؤنسمنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور سرجیکل اسٹرائکس آپ کے ذہن میں بقول عمران خان کے اس کی وجہ سے بہت زیادہ کولیٹرل ڈیمیج کے علاوہ بہت سے پرابلمز اور بہت سی مشکلات خیبر پختونخوا کے لیے اور ٹرائبل ایجنسی کے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اس کو آپریشن کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس علیحدگی کو کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیے، آپریشن سے نہ پہلے کوئی فائدہ ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا، اور نہ ہونے کی کچھ توقع ہے۔ ٹیمپریریلی آپ کو کچھ ریلیف مل جاتا ہے، لیکن جو سوسائٹی میں، پاپولیشن میں، عوام میں جو فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے، جو اینگر اور ڈسپونڈنسی کی طرف وہ جانے لگتے ہیں، اور جو سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہونے لگتے ہیں، اور اس میں تو یہ ہوا کہ 1000 سے زائد خاندان کوچ کر کے، ہجرت کر کے، بے سر و سامانی کی حالت میں خوست کی طرف چل دی ہے، افغانستان کی طرف۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے، نقصان ہوا ہے بہت وسیع پیمانے پہ، انفراسٹرکچر کا، املاک کا، دیہات کا، مکانات کا، اور انسانوں کے ضیاع کا۔ بمباری سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ٹارگیٹڈ آپریشن ان لوگوں پہ جو کہ آپ پہ حملہ کرتے ہیں، یہ حکومت کا حق ہے، کیونکہ اگر حکومت پہ حملے ہوں، حکومت کی تنصیبات پر، حکومت کے فورسز پر حملے ہوں، تو حکومت خاموش تماشائی نہیں رہے گی۔ لیکن ہوا سے، اوپر سے، آسمان سے بمباری کرنا
اور ہیلی کاپٹر گن شپ اور بامبرز اور جیٹ جہازوں سے بمباری کرنا اور پاپولیشن کے خلاف کارروائی کرنا، یہ قابل افسوس بات ہے. اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل اس سے بڑھ جائیں گے اور لوگوں میں اینگر اور جو غصہ ہے وہ زیادہ ہوگا اور لوگوں کی محرومیت میں اضافہ ہوگا. تو جہاں تک سجنا گروپ کی علیحدگی کی بات ہے، یہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی اور ایک بہت سیریس اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ساؤتھ وزیرستان میں ملا نذیر کا گروپ پہلے ہی سے حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے. نارتھ وزیرستان میں حافظ گل بہادر کا حکومت کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ تحریک طالبان کا حصہ نہیں ہے. اب سجنا گروپ جو سب سے پاورفل گروپ ہے ساؤتھ وزیرستان میں، تو وہ بھی تحریک طالبان سے علیحدہ ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اب نارتھ اور ساؤتھ دونوں میں تحریک طالبان کی جو مرکزیت ہے، ان کا جو اثر رسوخ ہے، جو کنٹرول ہے، جو کہ سینٹرل تھا ساری تحریک کے لیے، وہ اب نہیں رہا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا سنو بالنگ ایفیکٹ ہو جائے اور ایجنسیز میں اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے ہیں. لہٰذا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک ایجنسی کے سطح پہ تنظیمیں مرج ہوں اور پھر آپ ایجنسی کی سطح پہ آپ ان سے محمد ایجنسی، باجوڑ ایجنسی وغیرہ، ان سے آپ علیحدہ ایکارڈ کریں، ان کے ساتھ معاہدے کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ علیحدہ ہوئے ہیں ان سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے اور جو لوگ ابھی تحریک طالبان کے اندر ہیں ان سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے. ان کا فارمیٹ کیا ہو اور کیسے ہو، کون کرے، وہ دوسری بات ہے. ٹھیک ہے جی. جنرل اسد درانی صاحب، پہلا سوال تو یہ کہ بہت سے لوگ، جو کہ آئی تھنک بڑا جینوئن اور ویلڈ ایک سوال ہے، رستم شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سرجیکل ایئر اسٹرائک، بامرز، ہیلی کاپٹر وارشپس، یہ کیوں استعمال کیا جائے؟ بوٹس آن دا گراؤنڈ کیوں نہ کیے جائیں؟ امریکیوں نے جب افغانستان میں بامبنگ کی تھی، ہم نے ان کی بڑی تنقید کی، بہت کرٹیسائز کیا. یہ اپنے لوگ ہیں ہمارے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے رستم شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سے مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ظاہر ہے انفراسٹرکچر کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہوائی بمباری ہی کیوں؟ کوئی اور اپروچ کیوں نہیں استعمال کر سکتے تھے ہم؟ اصولاً تو بالکل صحیح بات ہے، میں بالکل اس سے اختلاف نہیں کروں گا کہ آرٹلری اور ایئر فورس جو کہ ایریا ویپنز ہوتے ہیں، ایئر فورس بعض دفعہ کر لیتی ہے کوئی ٹارگٹ بھی، وہ کاؤنٹر انسرجنسی کوائن ویپنز نہیں ہیں. کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کی جب تک زمین سے واقفیت نہ ہو اس پر کامنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، ایئر فورس والوں سے بھی بات ہوئی، باقیوں سے ہوئی، ان کا خیال ہے کہ یہ بڑی ایفیکٹو ہوتی ہے اور اگر تھوڑا سا کہیں کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شاید انوائڈیبل، اس طرح کی بات کرتے ہیں. اصولاً تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. جو دوسرے آپریشن جو کہ صحیح استعمال ہوتے ہیں، بوٹس آن گراؤنڈ سے بھی زیادہ انٹیلیجنس آپریشن، آپ نے لوگوں کو استعمال کیا، کچھ لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا، کچھ کا پتہ لگ گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ بھی اسپلٹ کی طرف جب آئیں گے تو اس کے اوپر بات کر لیں گے. اگر ہمارے پاس وہاں پر یہ قابلیت نہیں ہے کسی وجہ سے، کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا اور وہاں پر انگریز نہیں کر سکتے، یا وہاں پر ابھی ان کو یقین ہے، جیسے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جی ابھی تک ہم نے سویلین پاپولیشن کو علیحدہ کر دیا ہوا ہے، تو شاید نہ جانتے ہوئے پورا ٹھیک نہیں کہنا ہونے لگا، شاید آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے. تیسری مجبوری جو ہے وہ سیاسی مجبوری ہوتی ہے. کاغذ صاحب اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں. آپ کو کچھ رزلٹ جلدی چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ کا خیال ہے کہ یہ 70 آدمی ایک ایئر اسٹرائک میں جو مریں گے، ان کو ہمیں مارنے کے لیے شاید ہو سکتا ہے مجھے ہمیں 2-4 مہینے یا 6 مہینے لگ جائیں، اس وقت تک کیا ڈیولپمنٹ ہوگی، یہ وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. اچھا، یہ آپ کا مطلب ہے کہ ایک ریپڈ رسپانس کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ سیاسی مجبوری اگر ہے، ورنہ دیکھیے، ورنہ آپ کریں، آرام سے کریں گے، کچھ کو ایلیمینیٹ کریں گے، اور جتنا بھی وقت لگتا ہے. کاؤنٹر انسرجنسی دہائیوں کا معاملہ ہے، 20-30 سال لگتے ہیں اس میں. کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، ایلیمینیٹ کرتے ہیں، اور جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے نا، اس کے بھی کئی لیول ہیں. ابھی یہ سرکاری لیول پر بات کرنا، گورنمنٹ کے لیول پر، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی. کئی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور آخر میں آ کر رپورٹ کرتے ہیں کہ جی 40 گروپ ہے تقریباً ان کے اندر،
اس میں سے 10-15 کا تو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہی کرنا ہے. کچھ کو ہم رام کر لیں گے, کچھ کو ہم کسی اور طریقے سے کوئی اور وعدہ کر کے کر لیں گے, کچھ کو ہم ایسے اسپلٹ کریں گے. تو اس کو اگر یہ اسپلٹ اس اسٹریٹجی کے تحت ہوئی ہے تو میں کہوں گا وہ تو کامیابی ہے. اگر اس کے اوپر یہ اگر آگے ہو گیا کہ آپ نے بمباری کیوں کی ہے, تو میں نے 3 چیزیں بتا دی آپ کو, دوبارہ جلدی سے بتا دیتا ہوں. علاقہ, اس کے اندر انگریس, واقعی آپ نے ٹارگٹ جو ہے اس وقت تک آپ نے کر لیا ہوا ہے اور سویلینس کو نکال دیا ہے. اور تیسری سیاسی مجبوری, اس کے متعلق میں کہوں گا نہیں لیکن مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ 20-30 سال نہیں لگنا ہم نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں. ویل ورک آور وے بیک اپ. نمبر 3 تو ظاہر ہے مجبوری تو بن ہی گئی تھی, کیونکہ بڑے عرصے سے حکومت کی بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جی آپ یو ڈریگنگ یور فیٹ آن اٹ, کچھ ہو نہیں رہا. مذاکراتی عمل بھی بڑا آہستہ رفتار سے چل رہا ہے, اور دوسری طرف سے ایک لابی یہ بھی تھی جو کہہ رہی تھی کہ جی آپریشن کریں, ہمارے معصوم سویلینز یہاں پہ اربن پاپولیشن میں بھی مارے جا رہے ہیں. سیاسی مجبوری کے علاوہ قاہرہ صاحب, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شو آف پاور بھی, کیونکہ ظاہر ہے ملٹری ہیز بین آن دا بیک فٹ ایز ویل, کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک ویزیبلٹی دکھائی جائے کہ ہو از دا باس؟ دیکھیے رحم, پہلے تو میں محمد صاحب کا, رسول خان محمد صاحب کا میں اپریشیٹ کروں گا, مجھ سے سینئر ہے, بڑا یہ ہمارے لیے بڑا لرننگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی جماعت کے, میں بشک اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میری اسائنمنٹ نہیں ہے, اس لیے میں اس کے بیہاف پہ بات نہیں کروں. تو میرے لیے ایک لرننگ پروسیس ہے, تھینک فل ٹو ہیم. تو گزارش ہے جی, یہ جو آپریشن ہو رہا ہے بہت دنوں سے, بہت سالوں سے یہ عمل جاری ہے. آپریشن بھی ہو رہا ہے, سلیکٹو آپریشن ہے, کبھی وہ فوج کر لیتی ہے, کبھی وہ باقی ہماری ایجنسیز کرتی ہیں, وہ پولیس بھی کرے گی تو آپریشن ہی ہوگا. لیکن اس آپریشن کو کوئی شوق سے کر رہا ہے. جب آپریشن کریں گے تو اس پہ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوگا, انفارچونیٹ بات ہے. اگر تو آپ نے کسی ایسی جگہ پہ, کسی جنگل میں, کسی کھائی میں دہشت گردوں کا, کسی ڈاکوؤں کے گروپ کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو گھیرا کر لیا ہے اور ان کو مارتے ہیں آپ, تو پھر تو آپ کہتے ہیں جی کہ ایک بندہ بھی کولیٹرل ڈیمیج میں نہیں آنا چاہیے. آپ کو چاہیے جی آپ اپنے پہ قابو رکھتے, تھوڑا سا ٹائم دیتے. یہاں صورتحال وہ نہیں ہے. یہ لوگ انہی بستیوں میں رہنے والے ہیں, اور وہاں سے بستیوں سے اگر ہم ٹائم دیں گے, اگر ہم وہاں سے سویلین پاپولیشن کو ایویکویٹ کرائیں گے تو وہ بھی ایویکویٹ ہو جائیں گے. ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ یہ طالبان ہے. سوال یہ ہے کیا کیا جائے, طالبان کا اس صورتحال میں ان سے نپٹا کیسے جائے. وہ ٹیریٹری ایسی ہے, ٹرین ایسی ہے کہ اس ٹرین میں ہماری جو سول فورسز جاتی ہے تو وہاں پہ انہوں نے بے شمار آئی ڈیز لگائے ہوئے ہیں. جس طرح ڈیمیجز ہمارے ہو رہے ہیں, ہمارے جوانوں ہماری گاڑیوں پہ حملے ہوتے ہیں, پہاڑوں سے بیٹھ کے وہ راکٹ اٹیک بھی کر لیں, ان کی بھی ایک کیپیسٹی ہے. یہ الگ بحث ہے کہ وہ کیپیسٹی کس نے بلڈ کی ہے, وہ ہماری اسٹیٹ نے بلڈ کی. تو اسی نقطے پہ ہم, وہ اب ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. قاہرہ صاحب اسی نقطے پہ ہم واپس آئیں گے کہ جی فرمائیے, میں بریک لینا چاہ رہی ہوں. یہ بات یاد رکھیے, اگر آپ طاقت کو آرگنائز کر کے کسی اسٹرکچر, کسی قانون کے تحت آرگنائز کرتے ہیں, اس کو ویپنائز کرتے ہیں, اس کو ٹرینڈ کرتے ہیں, تو وہ فوج ہوتی ہے. اور اگر وہ ان آرگنائزڈ ہو, ڈس آرگنائزڈ ہو, اور آپ گینگسٹرز کے گروپ بنا دیتے ہیں, تو پھر وہ طالبان کا شکل اختیار کر لیتے ہیں, پھر وہ آپ کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. اور یہ چند گروپوں کے ساتھ اگر گورنمنٹ پاکستان کا کوئی ریٹن یا ان ریٹن معاہدہ ہے کہ جی فلاں گروپ تو پاکستان پہ اٹیک نہیں کرے گا, وہ افغانستان پہ جا کے اٹیک کرے گا, بٹ سٹنگ آن دی ٹیریٹری آف پاکستان, یہ پالیسی آج تک ہمارے لیے کام نہیں کر پائی. دنیا ہم پہ یہی بلیم کرتی ہے. ہمیں یہ واضح کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے ان گروپس کو جو ان آرگنائزڈ ہیں, جو ریپرزینٹیٹو نہیں ہے, جو ان آرگنائزڈ ہیں, کیا ہم نے ان کو آرمیز تسلیم کر لیا ہے کہ آج وہ پاکستان پہ اٹیک نہیں کر رہے, کل وہ چاہیں گے اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے کل وہ پاکستان کی طرف رخ کر لیں گے. اور اس کی مثال یہ بھی ہے کہ جو لوگ کشمیر میں لڑ رہے تھے اس وقت ساری قوم ان کے ساتھ تھی, ان کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں, لیکن جب ان کے رخ اپنی طرف ہوئے تو وہ عذاب بن گئے. دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس قاہرہ صاحب نے ریز کیے ہیں, ہمارے ہاں بہت پیدا ہو گئے. کم بیک ٹو دیٹ, آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لیں گے. تو ان آفیشل کیپیسٹی میں جن کو ہمیں الزام دیا جاتا ہے کہ ہم نے گروم کیے ہیں, نرچر کیے ہیں, ان کا اب کیا مستقبل ہوگا. اور ساتھ ہی میں یہ پوائنٹ جو جنرل اسد درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اس ٹرین کی کہ جو ہماری اپنی ٹرین ہے, تو پھر ڈرونز کے لیے ہم وہ کیپیسٹی یا انڈیڈ ملیٹنٹس وہ کیپیسٹی ہمارے ہی افواج کو مارنے کے لیے, ٹارگٹ کرنے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں. ٹیکنگ بریک ہے, بیک ان a few minutes to come back and join us.
वेलकम बैक, यू वाचिंग आज विद रहम खान और हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान की अलहदगी के खदशात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आए हैं और साथ ही साथ ऑपरेशन जो कि किसी सूरत में शायद शुरू हो चुका है। रुस्तम शाह मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है पेशावर से। रुस्तम शाह साहब, आपसे ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी और आपने वो उन ख्यालात का, उन जज्बात का इजहार किया जो कि खैबर पख्तूनख्वा में, जिसके साथ बहुत से लोग आइडेंटिफाई करेंगे, रिलेट करेंगे कि गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। और जाहिर है जो लोग अफेक्टीज हैं, एक हिसाब के मुताबिक शायद महसूद कबाइल में से 1.6 मिलियन लोग अभी तक इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं और जाहिर है इस ऑपरेशन के बाद क्या हाल होगा। आप कायरा साहब की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी कार्रवाई होगी तो उसका कोलैटरल डैमेज या उसके कोई ये तो मुमकिन नहीं है कि इवैक्यूएट किया जाए या इतना सिग्नल दिया जाए ताकि जाहिर है फिर कार्रवाई कामयाब नहीं हो सकती। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं। ट्राइबल एरिया में 16 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का तबाह हो चुका है, इकानमी ख़त्म हो चुकी है। हर 2-3 मील के बाद इंटरसेप्शन होते हैं, सर्चेज होती हैं। वहाँ पे लोग अब समझते हैं कि ये इलाका अब ज़िंदगी गुजारने के लिए मौजू नहीं है। वहाँ पे जो तालीमी इदारे हैं वो बंद हैं। बाड़ा सब डिवीज़न जो खैबर एजेंसी का है उसमें 5 साल से कर्फ्यू है। वहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टेलीफोन का निज़ाम किसी जगह भी काम नहीं करता। जैसे आप ट्राइबल एरिया के अंदर दाखिल हो जाएं, टेलीफोन का निज़ाम ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ के लोगों पर ज़िंदगी तंग कर दी गई है। हक़ाइक़ पाकिस्तान में लोगों को मालूम ही नहीं है कि ट्राइबल एरिया पे क्या गुजरी है पिछले 10 या 12 साल में और कैसे उन लोगों ने सफ़र किया है। उन लोगों को ऐसे ट्रीट किया गया जैसे मक्खी और मच्छरों को भी कोई ट्रीट नहीं करता। तो हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर वो लोग जो हैं जो एतराज़ करते हैं पॉलिसीज़ पे, अगर वो ट्राइबल एरिया जाएं, वहाँ कोई चक्कर लगाएं, हालात को देख लें, तो मैं समझता हूँ कि उनकी राय शायद बदल जाए। आपको ये लगता है रुस्तम शाह साहब कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा या ट्राइबल एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं और उनका जिनका आना जाना है या राब्ते हैं, उनकी जो सोच है, ये जो माइंड सेट है, जाहिर है चूंकि उनको इतलात मिलती हैं, उनकी डायलॉग की तरफ या मुज़ाकरात की तरफ ज्यादा रुझान है। लेकिन जो जाहिर है पंजाब में तशरीफ फरमा होंगे या सिंध में बैठे होंगे, शायद उनको, और चूंकि मीडिया भी अलाउड नहीं है, शायद इतना एक इनसेंसिटिविटी डेवलप हो सकती है। देखिए, हालात को अवाम तक पिछले 10-12 साल में यही पॉलिसी रही कि अवाम को न किसी टीवी चैनल्स को वहाँ पे जाने नहीं दिया गया, और जाने अगर दिया गया है तो एक प्रोग्राम के नीचे अरेंज टूर्स कराए गए हैं 2-2, 3-3 घंटे। यहाँ पे टॉक शोज में कुछ और बातें होती हैं, रियलिटीज वहाँ पे कुछ और हैं। और ये सिलसिला जारी है अभी तक। और मैं नहीं समझता कि ऐसे जो जहाँ पे हेलीकॉप्टर गनशिप हो और जहाँ पे ऊपर बमबारी हो रही हो और आर्टिलरी से जो है हम शेलिंग हो रही हो और तोफाना इस्तेमाल किया जा रहा हो, रॉकेट इस्तेमाल किए जा रहे हों, वहाँ पे ये मुमकिन ही नहीं है कि कोलेटरल डैमेज को कंटेन किया जाए या मिनिमाइज किया जाए। जैसे इसी ऑपरेशन में आपने मीडिया में खबरें आई कि एक खानदान में, एक घर में 17 लोग जो हैं वो मारे गए। उसमें एक सूबेदार मेजर भी शामिल थे, ये छुट्टी पे घर आए थे। तो ये बातें यहाँ सूबा सरहद के लेवल पे कम से कम लोगों को मालूम है। बाहर हो सकता है कुछ मालूमात लोगों को कम हो, लेकिन या टारगेटेड ऑपरेशन हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत की शायद जिम्मेवारी है कि अपने लोगों के खिलाफ 10-12 साल तक वो जंग करे और ऊपर से जो है वो आग बरसाई जाए। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ड्यूरेबल सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए उन लोगों को एंगेज करना है। ये देखना है कि 12 साल पहले ये एक बेस्टन ऑफ पीस था, अब ये क्यों एक इतना वायलेंस में और वायलेंस ने ओवरटेक किया और वहाँ पे इतनी लड़ाई शुरू हो गई, इतनी इंसर्जेंसी शुरू हो गई, मिलिटेंसी शुरू हो गई। ये लोग कहाँ से आए, कैसे आए, हालात क्यों पैदा किए गए? आखिर 1980 की दहाई में अफगानिस्तान में जंग जारी थी और ये सारे मुजाहिदीन ट्राइबल एरिया से होके जाते थे, लेकिन ट्राइबल एरिया पे उस सारी जद्दोजहद का कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम्स इंटैक्ट थे, इंस्टीट्यूशंस इंटैक्ट थे, पॉलिटिकल एजेंट का निजाम, मलकों का निजाम, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का निजाम इंटैक्ट था। जब उस निजाम को आपने खत्म किया, डिसमेंटल किया, तो आपने वैक्यूम क्रिएट किया और उस वैक्यूम से फायदा उठाने के लिए मुख्तलिफ ग्रोह
मंदिर आम पर आ गए, वरना ट्राइबल एरिया में तो अफगानिस्तान की जो 80 की दिहाई में जो जंग लड़ी रही, उसका ट्राइबल एरिया पे कोई असर ही नहीं हुआ था। जी, जनरल असद दुरानी साहब, आपने जी ठीक ठाक थे बिल्कुल। ठीक, कता कलामी माफ। जनरल असद दुरानी साहब शुरू में बात कर रहे थे इंटेलिजेंस की कमी के बारे में, तो यहाँ पे मुझे यही सवाल उठता है कि अगर कोई ड्रोन, कोई चिप भी लगाते हैं, उसके लिए भी इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। अगर हमारे ही अफवाज पाकिस्तान को कोई टारगेट करता है, तो अगर वो जैसे कायरा साहब ने कहा मे बी कि हमने ही नर्चर किया हो, किसी और ने नर्चर किया हो, लेकिन है तो डिसऑर्गेनाइज, अनऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहा है, वो कैसे इफेक्टिव है? और अफवाज पाकिस्तान क्यों इफेक्टिव नहीं है कि टारगेटेड ऑपरेशन कर सके? और उसका दोहरा जो नुकसान हो रहा है वो ये कि फिर उनको भी नफरत का एक नजर से देखा जा रहा है, जो कि ज़ाहिर है एक पॉजिटिव बात नहीं हो सकती। कभी भी अगर बात करनी पड़ जाए ना कि इंसर्जेंसी क्या होती है, काउंटर इंसर्जेंसी कैसी होती है, तो सारी बात जो है ना ये अपनी जगह पर सही होती है बिल्कुल। और जहाँ तक शुरू होने का ताल्लुक है, मैं अभी रुस्तम शाह साहब के साथ बड़े 25-30 साल हो गए, उनके साथ बहुत ज़्यादा इत्तेफाक करता हूँ। और मेरे नज़दीक ये ट्राइबल एरिया ख़राब होना शुरू हुआ 2004 में जब हमने फ़ौज भेजी साउथ वज़ीरिस्तान में। ये सब हो गया, लेकिन आता यही है कि जब एक स्टेज आ जाती है कि अभी आपने करना क्या है, उस वक्त वो सारे मुहर्रकात मौजूद हैं। और जब ये जो सा है जिसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर कोई कहेगा, कोई इसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहेगा, उसके अंदर जितने बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को, इंसर्जेंट्स को, उनके लिए छुपना आपने बताया बड़ा आसान होता है, उनके लिए चिप लगाना बस पता ही नहीं लगता कौन कौन है। तो ये एक इतनी पेचीदा सूरत हाथ में आपने अपने आप को वीव थ्रू करना है कि कैसे पहुंचना है, कैसे करना है। लेकिन plenty of time to organize, अभी तक हमने स्ट्रेटेजी क्यों डेवलप नहीं की? अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी बात है कि जी 10 साल में नहीं, मैंने इसलिए कहा कि दिहाइयां लग जाती हैं, क्योंकि आप शुरू करते हैं एक इम्पल्सिव रिएक्शन पर, जैसे इस वजीरिस्तान में किया, साउथ वजीरिस्तान में 2004 में। आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ समझ आती है, कोर्स करेक्शन शुरू होता है, कुछ लोगों को आप अपने साथ मिला लेते हैं। इन्होंने 2 ग्रुप्स का बात किया, मैं तो बड़ा खुश था कि इन लोगों को हमने अपने साथ रखा हुआ है। अगर हकानी ग्रुप के खिलाफ कभी भी कोई एक्शन लिया जाएगा, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि हमारे दुश्मन नहीं है। हाउ डू वी असर्टेन कि कौन किस वक्त दुश्मन है, कौन नहीं? कायरा साहब जहां इशारा कर रहे थे वो वजाहत करें। ये वो उनका काम होता है ना, जो लोग ये कर रहे होते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने शुरू में ही कहा ना कि जो आप अपना व्यू है, रुस्तम साहब का अपना व्यू है, जनरल साहब का मेरा व्यू ये है कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस को किसी वक्त में एक अच्छे काम के लिए, आपने जंग लड़ी, हमने नहीं, दुनिया सारी ने लड़ी, और उस वक्त पिशावर में खड़े होके, रुस्तम साहब भी उस वक्त सर्विस में थे, जनरल साहब भी सर्विस में थे, मेरी जमात भी उस वक्त सियासत में थी, तो हम सब लोग इसमें थे कि जी हम बड़ी मुकद्दस जंग लड़ रहे हैं और हम अपने दरसगाहें, हम अपने मदारस, हम अपनी जगहें इस्तेमाल कर रहे थे। और जो कहा, मुझे बड़ा एहतराम है, बड़े सीजनड आदमी है रुस्तम साहब, बड़े साहिबुर राय आदमी है। मैं ये समझता हूं कि उस वक्त भी ट्राइबल एरियाज को जब हम अमन का गहवारा कहते हैं, अमन वहां नहीं था, वहां उस वक्त भी वायलेंस था, ट्राइबल फाइट थी, और उसको FCR के तहत दबा के रखा गया था। तो क्या आपने सदा उसको दबा के रखना है? और उसके बाद जब आपने उस एरिया को, उसके साइकी को बदलना है, उसके अंदर आपने वहां से अपने वार मशीन खड़ी की है, वहां से अपने लोगों को भर्ती किया है, वहां पे मदारस खोले हैं और उनको एक वार मशीन के तौर पे लड़ाना शुरू किया है, तो आप उसका हिस्सा थे ना जी। आप कुफर और इस्लाम की वो जंग लड़ रहे थे ना, जो अफगानिस्तान में लड़ी गई। आप आज उसके अफरमात आपको पड़ रहा है। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे हमारी जंग नहीं है, कुछ लोग पाकिस्तान के वो थे जो कहते थे कि ये हमारी जंग नहीं है, और हमें गद्दारी के ताने मिलते थे, हमें इस्लाम दुश्मनी के ताने मिलते थे। आज वो वबा हमारे गले पड़ गई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जनाब हकायक अपनी जगह, एट्रोसिटीज अपनी जगह, पाकिस्तान के बाकी लोगों का क्या कसूर है? मैं कहता हूं मेरे शहर का क्या कसूर है, लेकिन मैं पाकिस्तान का कलेक्टिव हिस्सा हूं। और ये बात जब हम कहते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए, फौज, मुझे फौज के बेशुमार चीजों से इख्तलाफ होगा, बेशुमार पॉलिसी से। मैं सारी जिंदगी फौज के खिलाफ स्ट्रगल किया है कि पॉलिटिकल रोल आपका नहीं है, आज भी है, आज भी उस पर खड़ा हूं, मेरी जमात खड़ी है, लेकिन ये फौज हमारे दिफा के लिए है। तो लेकिन उनका इमेज नहीं खराब हो रहा। मैं पूछना चाह रही हूँ कि अफवाज डिफेंस के लिए तो उनका इमेज नहीं खराब हो रहा। इमेज की बात नहीं है यार, मैं और बात करने लगा। नहीं, लेकिन वो नफरत फैल रही है अफवाज की, अफवाज पाकिस्तान, नफरतें फैलती हैं। ये कोई अफवाज पाकिस्तान ऐसी नहीं होंगी, दुनिया की कोई फायदा ऐसी नहीं हो सकती कि जो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना ओपिनियन बिल्ड कर सके। उसके साथ जब कौम खड़ी होगी तो इमेज ठीक रहेगा, कौम ठीक साथ नहीं होगी तो फिर वो सूरत हाल भी होगी जब अपनी फौज अपनी GSQ में वर्दी पहन के नहीं जा सकती, वो भी वक्त आ जाता है। लेकिन वही तो मसला कि फौज साथ है, क्या फौज है? फौज के पीछे अवाम है, मेरा मतलब है पूरी तौर पे। मुझे बात जरा कहने दीजिए।
सवाल ये है कि जब हम ये कहते हैं कि ये कुछ इलाके बंद कर दिए गए, सर्च होती है, फला होती है, इसका मतलब है कि जो कुछ कर रही है वो फौज कर, इसके माने भी है ना, खुल के कहिए। मैं तो नहीं कर रहा वहां सर्च, मेरी तो वहां पोस्टें नहीं लगी हुई, मैं तो वहां ऑपरेशन नहीं कर रहा। तो क्या हमारी फौज हमारे लोगों को मार के खुश है? क्या वो चाहते हैं कोलैटरल डैमेज हो? क्या फौज के पास ये ऑप्शन? नो, कभी नहीं हो सकता। और जब वहां पे ऑपरेशनल कमांडर बैठ के फैसला करेगा तो जनरल साहब यहाँ ठंडे कमरे में बैठ के, मैं जरा ठंडे कमरे में बैठ के बातें और तरह करूंगा, लेकिन जब उसके जवान मर रहे होंगे, वहां पे आईडीज लगे होंगे, मैंने पहले कहा हाँ बिल्कुल कोलैटरल डैमेज होता है। क्या अफगानिस्तान, क्या ताइवान की जंग में अमेरिका का नुकसान नहीं हुआ? कोरिया की जंग में अमेरिका का नुकसान नहीं हुआ? हजारों लोग अपने मरवा लिए उन्होंने, लेकिन इंसर्जेंसीज में ऐसा हो जाता है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, वो हमारे भाई हैं, लेकिन रुस्तम शाह साहब, अमन साहब से गुजारिश यह है कि आपने उस वक्त भी जब बिल्कुल अमन था, उस वक्त भी वहां एफसीआर के तहत टाइप को कंट्रोल किया जाता था, नॉर्मल लॉ के तहत नहीं। तो क्या हमें पंजाब को भी वापस सिक्खाशाही के दौर में ले जाना चाहिए कि वो कानून बड़ा अच्छा था, तब तो अमन था, अंग्रेजों के दौर में तो अमन था? आपने आगे बढ़ना है। हाँ, अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता बेहतरीन रास्ता है, वो रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए, लेकिन क्या मुज़ाकरात अनलिमिटेड टाइम के लिए पेंडिंग पड़े रहेंगे? लेकिन मुज़ाकरात तो शुरू ही नहीं हुए। दूसरी बात रहम यह है कि अगर आप ये समझते हैं मुज़ाकरात शुरू है, सवाल यह है मुज़ाकरात हर दौर में होते रहते हैं, कभी फौज के जरिए, कभी एजेंसीज के जरिए, कभी खुल के। लेकिन मेरी गुजारिश और है, अगर आपने मुज़ाकरात ही करने हैं और ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करना कि कोलैटरल डैमेज होगा, तो फिर सीधी जाकर उनकी बात मान लीजिए, वो तो बात मानने को तैयार नहीं होंगे। एक छोटा सा सवाल, सवाल ये है, रास्ता तो नहीं, छोटा सा सवाल, शरीयत नाफिज करनी है, रुस्तम शाह साहब ने भी कहा खैबर पुख्तनख्वा ही में क्या मसला है, क्या वजीरिस्तान ही में, क्या सिर्फ ट्राइबल एजेंसी ही में मसला है? प्रॉब्लम ये है कि जब वहां पे आप एरियल बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो खैबर पुख्तनख्वा में कोई बैठा हुआ ये सोचता है या सोचती है कि फिर बाकी जहां पे मसाइल हैं, कराची में मसला है, साउथ पंजाब में, वहां पे एरियल बॉम्बार्डमेंट क्यों नहीं करते? बिट्स एंड पीसेस में बात कर रहे हैं, ये तालिबान, ये वजीरिस्तान का इशू, सवाल का जवाब देते, मैं उसी पर लगा, ये वजीरिस्तान हो, ये तालिबान का इशू, ये छोटा सा इतना सारा है, ये पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ माइंडसेट है जो इस्लामाबाद में भी है। लेकिन एरियल बॉम्बार्डमेंट सिर्फ वजीरिस्तान में हो रही है इसलिए कि वहां ऑपरेशंस हो रहे हैं, वहां लड़ाई हो रही है, यहाँ पे मेंटल सपोर्ट है, ये एक माइंड सेट है जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। कहीं और आपने सुन लीजिए, ये उसको ब्रीड भी कर रहा है, ये उसको सपोर्ट भी कर रहा है उस लड़ाई को, और जब तक आप इसको नहीं लड़ते, इसको फाइट नहीं करते, मुमकिन नहीं है कि आप अमन कायम कर पाए। रुस्तम शाह साहब, सब कुछ वजीरिस्तान से चूंकि ब्रीड हो रहा है और ना वो पहले कभी अमन का गहवारा था। मैंने यहाँ से कहा ब्रीड हो रहा है, अच्छा यहाँ से ब्रीड पाकिस्तान भर से ब्रीड हो रहा है, पाकिस्तान भर से सपोर्ट हो रहा है भाई, वो माइंडसेट आपके पूरे मुल्क से सपोर्ट हो रहा है। किसने कहा आपको? लेकिन फिर एरियल बॉम्बार्डमेंट क्यों वजीरिस्तान में हो रही है? एरियल बॉम्बार्डमेंट इसलिए वहां हो रही है कि वो लोग पाकिस्तान की फौज पे हमले कर रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान के जो अब आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उसको मार रहे हैं। वहां पे वो लोग में नहीं है ना जी, जीएचक्यू नहीं है, लेकिन वहां बैठे हुए लोग यहाँ पे हमले कराते हैं। तो आपने उनकी, और ये भी बात है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत हद तक पता है कि कौन क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है और कहाँ कहाँ किसकी पनाहगाहें हैं। रुस्तम शाह साहब, आपसे सवाल की तलबगार हैं हम कि ये बताइए कि 10 साल पहले भी अमन का गहवारा तो नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी, वहां ही से ब्रीडिंग ग्राउंड अगर यहाँ है लेकिन वहां से आ रहे हैं मिलिटेंट्स आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, हकायत पे बात करें, 1947 से लेके 2002 तक अमन का गहवारा था, एफसीआर की वजह से नहीं था। कोई कानून की बुनियाद पे आप लोगों के एस्पिरेशंस को कभी क्रश नहीं कर सकते। एफसीआर क्या है, वो जो रिवाज है वहाँ का, उसको कोडिफाइड किया हुआ है। और ये टॉक शोज की बातें हैं, आप ट्राइबल एरिया में जाएं तो आप एफसीआर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे कानून को तस्लीम मानने को तैयार ही नहीं है। दो बातें हैं, ट्राइबल एरिया जो 70% है वो अनएडमिनिस्ट्रेड है, उसमें उनका अपना कानून चलता है, चाहे वो रिवाज से फैसले करें या शरीयत से फैसले करें। यही वजह है कि आज तक ट्राइबल एरिया में कभी भी किसी ने भी शरीयत की बात नहीं की, यानी शरीयत का मुतालबा किया है। उसकी वजह यह है कि 70% जो उनके पास इलाका है जहाँ पे हुकूमत का कोई इंग्रेस नहीं है, वहाँ पे उनकी जो मर्जी वो फैसले करते हैं। जो 25% हुकूमत को एडमिनिस्टर कर रही है, जो तनसीबात हैं, रोड्स हैं, कॉलेजेस हैं, ग्रिड स्टेशन हैं, स्काउट्स के जो कैंप्स हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी कानून चलता है, पहले भी चलता था, आज भी चलता है। मसला कानून का नहीं है वहाँ पे, न कभी रहा है कानून का। मसला बिजली का है, पानी का है, सड़क का है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का है। मसला यही मसाइल है। मसला इंसर्जेंसी है, मसला मिलिटेंसी है। शाह साहब, एक छोटा सा मुझे गाइड कर दीजिए, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मुझे गाइड कर दीजिए छोटा सा, कि क्या तालिबान
शरीयत का मुतालबा सरेंडर करके डेवलपमेंट के इश्यूज के ऊपर खड़ा होने को तैयार है। अगर तालिबान ये कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट कर दी जाए तो मैं कहता हूं कौन सी हुकूमत होगी जो 10-20 अरब रुपया डॉलर वहां नहीं लगाएगी। सारी दुनिया लगाने को तैयार है। आप उन शरीयत का मुतालबा सरेंडर कराएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुस्तम शाह साहब एक क्विक सा आंसर, क्योंकि मैं चाह रही हूँ जनरल साहब को भी बहस का हिस्सा बनाएं। जी, प्रोग्राम से भी आपसे रुखसत भी होऊंगा। 7 घंटे हमने उनसे बात की। 7 घंटे की बातचीत में उन्होंने कभी भी शरीयत का नाम नहीं लिया, न शरीयत का मुतालबा किया, न शरीयत का मुतालबा उनका तस्लीम किया जाएगा, न कभी किसी ट्राइबल एरिया में शरीयत का मुतालबा आज तक हुआ है। दूसरी बात, न कभी उन्होंने निज़ाम की बात की कि फलां निज़ाम चलाओ, फलां निज़ाम मत चलाओ। वहाँ पे बातें होती रही हैं, कैदियों की बात है, एमनेस्टी की बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस की बात है, कंपेंसेशन की बात है, ये बातें हैं, कंटेंशियस इश्यूज ये हैं। शाह साहब ये तो इन्वेंट्री नहीं है ना, इन्वेंट्री तो ये है कि जब आप डायलॉग उनसे करेंगे, आप उनसे फाइनल डायलॉग करेंगे इन्वेंट्री के सामने, तो बात और चलेगी ना। जनरल असद दुरानी साहब ने शुरू में एक बात की थी, रुस्तम शाह साहब, उसकी तरफ हम वापस चलेंगे और ये भी वजाहत करें कि जो वजीरिस्तान की अलहदगी के खदशात हैं, वेरी ब्रीफली उसकी क्या बेसिस है, और आपको लगता है कि ये जेन्युइन खदशात हैं, ये वाकई कंसर्निंग बात है? ज़ाहिर बलूचिस्तान में भी ऐसी बात सुनने में आती है। आपको क्या लगता है कि कितने फीसद इसका रिस्क है? बता दीजिए कि साथ जो अगर लोग अफगानिस्तान में गए हैं तो अफगानिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं पाकिस्तान से, क्या कि वहां लोग माइग्रेट करना शुरू हो गए? रुस्तम शाह साहब रिस्पॉन्ड करें। जी देखिए, वजीरिस्तान पाकिस्तान से अलहदा नहीं होगा, न अलहदा होने की क्यों उम्मीद है। पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, लेकिन जब डिस्पॉन्डेंसी की कैफियत हो जाए, जब एंगर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाए, तो वो किसी हुकूमत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हुकूमत का काम ये नहीं है कि अपने लोगों को इतना जो है वो डिस्पॉन्डेंट करें, इतना उनको फ्रस्ट्रेट करें, इतना उनके एंगर में। हुकूमत का काम ये है कि वहाँ एंगेज किया जाए, वहाँ जो ट्राइब्स हैं उनका रिवाज है, उनको एंगेज करें और उनको एंगेज करने के बाद इस मसले का हल निकालें, क्योंकि 10 साल पहले ये मसला नहीं था, क्यों पैदा हुआ, इस जो अवामिल हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है जनरल साहब, आप बताएं कि फिर वही इंफॉर्मेशन की कमी दिखाई दे रही है। अगर डिस्पॉन्डेंसी है और डेप्रिवेशन की बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट की कमी है, अगर इंगेज ही करना इतना आसान है, तो काहिरा साहब जब ये सवाल उठाते हैं कि पहले हमें ये क्यों नहीं पता था, इसका मतलब है कि इस तरफ भी इंटेलिजेंस की कमी है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि एक्चुअली शरीयत मसला नहीं है, मसला ये है कि डिस्पॉन्डेंसी और एंगेज नहीं हुए ट्राइबल एजेंसीज में जो भी लोग हैं। बहुत ज्यादा सवाल हैं, जवाब के लिए बहुत वक्त चाहिए। मैं मुख्तसर सिर्फ इतना बताऊं कि जब हम किसी चीज पर बहस करना चाहते हैं तो उस वक्त के हालात देखकर कोशिश करते हैं, और हमेशा ऐसा ही हुआ है, उस वक्त के हालात देखकर आप कोशिश करते हैं। अगर आप तारीख में चले जाएं, अपनी अपनी नैरेटिव बनाएं, और नैरेटिव आप हमेशा जानते हैं कि अपनी मर्जी की बनती होती है, कोई हक़ाइक़ का उसके साथ तल्लुक़ नहीं होता, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जहां तक इन्फॉर्मेशन का तल्लुक़ है, कभी किसी को 100% ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं। सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन ट्राइबल एरिया में हमेशा ट्राइबल्समैन की होती थी, फिर ये जो लेवीज होते थे, फिर फ्रंटियर कोर की होती है, ऐसा वगैरह तो बहुत देर के बाद आती है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसी तरीके से काम होता है। आपने कुछ किया, कभी कामयाबी हुई, कभी नाकामी हुई, एक खास स्टेज पर जब हम पहुंच गए 1.5 साल पहले, और उसके बाद कहा कि अभी हमने एक खास पर बातचीत भी करनी है और जब जरूरत पड़ेगी तो ऑपरेशन भी करना है, तो उसी लाहज में आप देख सकते हैं कि वो करना होता है। ये मैं इनसे बिल्कुल सीख मानता हूँ। रुस्तम शाह साहब ने कहा अलहदगी नहीं हो रही है, बिल्कुल साथ रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक बात है कि वहाँ पर जो हो रहा है, कोई ये नहीं है कि किसी की कोई दुश्मनी है वहाँ के। इत्तेफाक से वहाँ पर अभी सबसे ज्यादा लड़ाई, जो ड्यूरांड लाइन के दोनों तरफ सबसे ज्यादा लड़ाई है, कई वजूहात से लड़ाई है। तो क्या मसला सिर्फ ये है कि बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं ये उनकी बदनसीबी है? जी बदनसीबी है, इत्तेफाक की बात है। मैं अभी नसीब और बाकी चीजों के से ज्यादा मैं कहता हूँ कि ये जो तारीखी तौर पर ये जो इलाका था, ये अभी मैं ड्यूरांड लाइन कैसे बनी और फिर कैसे हमारा वो इलाका जो सा था इधर आ गया, उसके ऊपर चला जाऊं तो फिर वही बात लंबी हो जाएगी। लेकिन है हकीकत यही है कि इस इलाके के अंदर इसकी एक खास, बहुत खास अहमियत है। खत्म करने के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि जब अब्दुल रहमान ने कहा था ना कि ये इलाका जौन सा है, ये मैं मानता हूं कि ये ड्यूरांड लाइन की उस तरफ जाए, तो वो कहता था कि ये लोग तो मेरे साथ रहेंगे ना, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पहुंच नहीं सकता हूँ। और उसको असल में जो बात करना चाहता था कि यहाँ पर मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि चलिए ये किसी और का मसला बन जाए, अफगानिस्तान काबुल का ना मसला बने।
بہت لمبی چوڑی بہت اس طرح بہت کی بہت بات شکریہ جنرل اسد درانی صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، رستم شاہ محمد صاحب. آپ جہاں رہیں شاد باد رہیے. اللہ حافظ.